बिग ब्रदर फाउंडेशन एक बहुत बेहतरीन पहल सचिन जोशी द्वारा, जो कि अभी एक क्रीज पे है, हर रन के लिए 1000 रुपए डोनेट करते हैं इस संस्करण में सीसीएल के। और इस मुकाबले से पहले 1771 रन बन चुके हैं, यानी कि अब 17 लाख रुपया वो डोनेट कर चुके हैं। अभी तो काफी मैच है और यहां पे रूम मिलता हुआ जिसके कारण रन और मिलेंगे, यानी कि जोड़ लीजिए और पैसे 4000 रुपए। और चौका लगाया है सचिन जोशी ने, 25 में पहुंचे। थोड़ी सी खराब लाइन, दिशा इतनी बढ़िया नहीं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिमाग गांधी, स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय, बहुत ही बढ़िया शुरुआत। 51 रन और ये छठा ओवर चल रहा है, पहली गेंद हुई है। जिस अपेक्षित शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे वैसी ही शुरुआत दिलाई है इन दोनों ने। आज ऐसा लग रहा है कि शारीरिक भाषा इतनी बढ़िया नहीं भोजपुरी दबंग्स की। आमतौर पर मैं देखता हूं ये टीम बहुत ऊर्जा से भरी रहती है, जोश नजर आता है, जिसका कारण एक दिमाग ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं इतना स्कोर बनाया नहीं, तो निराशा उनके हाथ लगी है। और फिर शुरू में विकेट्स मिले नहीं, पर शायद इतनी अच्छी गेंदबाजी भी नहीं की। ऐसा लग रहा है थोड़े चोटिल हुए हैं विकेट कीपर यहाँ पे। फिलहाल नीचे चलते हैं बाउंड्री साइड पे, जहां पे गेलन है, और देखते हैं उनके साथ कौन है। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त मेरे साथ है वन ऑफ द nicest and the most prettiest girls that I've seen around this area. It's Paki from the Bhojpuri film industry, and also we have you who've been one of the longest supporters for the Bhojpuri Dabangs. जब से Bhojpuri Dabangs की शुरुआत हुई है CCL में, तब से आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, is that right? बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली इस टीम को फाउंड करने में कहीं ना कहीं मेरा इनिशिएटिव रहा है। व्हेन आई कम टू नो अबाउट CCL, मैंने सोचा कि एक ऐसी टीम तैयार की जाए जो भोजपुरी टीम हो और CCL में उतर जाए। And my dream came true when I contacted Sohail and I told him that we have a team and please, if you just, include us also, that will be great. And to my surprise, he was like, get your team ready and it will be done. And I was shocked. And then it was like journey on. And last year, Bhojpuri Dabangs was the strongest team amongst, all the teams played. So I am really hoping that this time the takeoff was not that good, since I also did not attend the Mumbai match. But this time is Ranchi home ground, and I really hope they give tough fight to Telugu Warriors and make it up. आपने कहा कि आप बहुत इंस्ट्रूमेंटल रही है टू ब्रिंग द भोजपुरी इंडस्ट्री राइट हियर। मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आपकी टीम में ऐसी क्या बात है जो किसी और टीम में नहीं है? You know what, the other teams have got the amenities which they always had, so that they could just play and practice throughout. Our major most problems were we didn't have a steady owner, and so we had fluctuating teams. And even after those odds that we had gone through, we kind of made it up in the last matches. Even this time we had some kind of odds, And I'm so happy that Telugu Warriors got Sachin Joshi ke jaise owner mile. This time I'm very touched because somehow Manojji thought of doing that bit. So now that we have some strong owner with us, so really hope that this takes off so well and we will make it up. Having Manoj Tiwari is definitely a positive for you guys. मुझे ये बताइए कि आप जो है obviously फील्ड पे नहीं है, लेकिन फील्ड के बाहर से बहुत सारी encouragement देते हैं फील्डर्स को और आपके टीम को, तो क्या टिप्स और एडवाइस आप देते हैं from the other side of the field? Advice is only this, like do or die. That's the attitude that you should have while you're playing match. Even if we win or not, that's not the thing. You should have sportsmanship. It's all finally a game, and we are not players. We are, actors. So from acting field to sportsmanship, it's a good spirit. So everyone should take up that spirit, and they should just have fun, enjoy the game. But no matter what, you should not just give up, because impossible says I am possible. On that note, thank you very much, Paki, and it's back to commentary.
शुक्रिया गेलन। जी हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया मैसेज है वहां पे। और दिबांग, ये अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ घट सकता है। पहले बताया आप उनके मैसेज से बहुत प्रेरित है। मैं देखिए, जब भी अच्छी चीज सुनने में मिलती है या देखने को मिलती है, मैं बहुत प्रेरित होता हूं। और प्रेरणा के सूत्र कई रहते हैं, पर जी हाँ, जब अच्छी सोच रहती है, विचार आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सुनने को मिलता है, तो प्रेरित होना सही चीज है, गलत नहीं। बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर भोजपुरी दबंग्स के लिए जीत का सूत्र क्या होना चाहिए, आप बताएं मुझे। देखिए, विकेट लेना, और कोई सूत्र नजर नहीं आ रहा, क्योंकि विकेट नहीं लेंगे तो फिर ये टारगेट बहुत आसान है। और विकेट जल्द से जल्द लेने होंगे। 10 ओवर के अंदर अंदर 3 या 4 विकेट लेने बहुत जरूरी है, तभी दबाव पड़ेगा। और जिस लय में सचिन जोशी है, उनको आउट करना सबसे पहले उनका एक प्रमुख कार्य होना चाहिए। तिवारी गेंदबाजी करते हुए थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। 5 गेंदों में 16 रन दे चुके हैं। समस्याएं बढ़ती हुई मनोज तिवारी के लिए। महंगा ओवर रहा है, 15 रन आए अब तक इस ओवर में। एक ही रन मिलेगा। 16 आए इस ओवर में, 64 बगैर कोई नुकसान। तो पावले हो गया, कमन कमन। विक्रांत जी 64 बगैर कोई नुकसान। अगर तुलना करें पावर प्ले की, तो भोजपुरी दबंग्स ने 3 विकेट गंवाए थे और इसी के कारण पूरी तरह से बैकफुट में धकेल दिए गए थे। और तेलुगु वॉरियर्स की बात करें तो देखिए, विकेट का कॉलम अभी तक खाली पड़ा है और ये सबसे फायदेमंद रहा है उनके लिए। 64 रन जोड़े हैं इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने और अपना विकेट नहीं गंवाया। भैया और बेहतरीन नींव रखी है दोनों ही बैट्समैन ने, प्रिंस ने और सचिन जोशी ने। प्रिंस उम्दा टेक्निक है, और ऐसी टेक्निक जिसे दिमाग बिल्कुल सही कह रहे थे दिलीप वेंसाका भी काफी खुश होंगे। कर्नल के नाम से जाने जाते थे और हमेशा मुझे याद आता है जो लॉर्ड्स में उन्होंने शतक लगाए हैं। जब भी लॉर्ड्स गए हैं, जिस भी टूर पे गए हैं, 3 बार लगातार शतक लगाना लॉर्ड्स में मैक ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, वाकई में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और गर्व महसूस करता हूं जब किसी भारतीय का नाम लॉर्ड्स के जो वहां पर जो बोर्ड टंगा है, वहां पर उनका नाम 3 बार आया है। 3 शतक जड़े थे उन्होंने वहां पर। मनोज तिवारी ने टॉस के वक्त खास उनका नाम मेंशन किया कि मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं, यहां पे आए हैं, उनकी मैंने काफी क्रिकेट देखी है। इतने लोग प्रभावित है, और क्या बैट्समैन थे दिलीप वेंसारकर, खासकर जो ऑन द राइज खेलते थे, लंबे कद के, बहुत बढ़िया टेक्निक थी, निडर। और कुछ देर पहले आप और आर के कमेंट्री कर रहे थे और आप जिक्र कर रहे थे किस तरह से अभ्यास करते हैं, शूटिंग करने के बाद कड़ी मेहनत करते हैं, और जब आप कड़ी मेहनत करते हैं तो उसका नतीजा बिल्कुल आपको मिलता है, और वही आज यहाँ पर हमें देखने को मिला। ये गेंद रुक कर आई और शायद बल्ले के ऊपर के हिस्से में लगी। कॉन्सेंट्रेट यार। दिमाग, बड़ी बात यह है कि जब भी आप शूटिंग करते हैं, लोगों को लगता है बहुत आसान कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य रहता है, घंटे आपको अभ्यास करना पड़ता है, वही रिप्लेस बार बार देने पड़ते हैं, जब तक सही तरह से जो एक्ट है जो आप निभा रहे हैं वो सही तरह से निपटा नहीं है। और उसके बाद वक्त निकालना, उस थकावट के बाद फिर अभ्यास करना, क्रिकेट खेलनी, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है।
ये दर्शाता है कि कितनी लगन है। बेशक इनका प्रोफेशन, पहला प्रोफेशन एक्टिंग है, पर जिन्होंने सिंसेरिटी से वर्क किया है, जो मेहनत की है क्रिकेट के प्रति, उसकी दाद देनी चाहिए। बिल्कुल, और सफलता आपको आसानी से नहीं मिलेगी। कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता आपके कदम चूमेगी। जैसे कहते हैं परिश्रम ही सौभाग्य का जननी है। 7 ओवर की समाप्ति, 68 बिना किसी नुकसान के। अड़सठ पे 7, और गेंदबाजी की अगर बात करें तो कोई भी गेंदबाज उतना प्रभावशाली नहीं लगा है। किसी को भी सफलता अभी तक प्राप्त नहीं हुई, और ये एक बड़ी समस्या है। यहाँ पर शीघ्र ही भोजपुरी दबंग्स को विकेटें चटकानी होंगी अगर इस मैच में बने रहना है। और अगर आज ये मैच हार जाती है तो शायद सेमीफाइनल में प्रवेश करने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और फिर से एक बार खराब फील्डिंग। ये एक बड़ी समस्या रही है। पूरी तरह से सुस्त लग रहे हैं यहाँ पर दबंग्स, फीके लग रहे हैं। दिमाग मैंने बहुत बार देखा है भोजपुरी दबंग्स को फील्ड में बहुत बढ़िया कार्य करते हुए, बहुत बढ़िया स्तर की फील्डिंग करते हैं, पर आज शायद कुछ भी उनके पक्ष में नहीं जा रहा। जहां पे डाइव लगाई या रोक नहीं पाए, समस्याएं बढ़ती हुई। आपको बैकअप करना अपने गेंदबाज को बहुत जरूरी है। अभी भी गेंदबाजी करने के लिए आया जयेश, और बिना कोई गेंद डाले 5 रन दे चुके हैं। अभी एक भी गेंद, लीगल गेंद डाली नहीं है उन्होंने। बड़ी आसानी से यहाँ पर तेलुगु वॉरियर्स अग्रसर हो रहे हैं उस लक्ष्य के पीछे, जीत के पीछे। 83 रन अभी भी चाहिए, 78 गेंद बाकी। बहुत ही बढ़िया तालमेल। ये एक खासियत रही है इन दोनों बल्लेबाजों की। प्रिंस और जोशी की बात करें तो सिंगल्स लेते रहते हैं तो छोर बदलता रहता है, और इसके कारण दबाव भी बॉलर के ऊपर पड़ता रहता है। तेलुगु वॉरियर्स जैसे दिख रहा है बहुत मजबूत स्थिति में है, पर एक लाभ उनको और मिल सकता है अगर 15 या 16 ओवर में मुकाबला खत्म करे। उनका जो नेट रन रेट है उसमें काफी इजाफा हो जाएगा। पहला मुकाबला भी जीत चुके हैं, बंगाल टाइगर्स को उन्होंने हराया था हैदराबाद में। बेहतरीन वो मुकाबला था, हालांकि बंगाल टाइगर्स ने अच्छा वहां पे प्रदर्शन किया, पूरा जोर लगाया। पर आज जिस स्थिति में है, यहां से अब 80 रन चाहिए 76 गेंदों में। आस्किंग रेट को यादा नहीं, 10 विकेट उनके पास है। उनका खेमा देखिए दिलीप अंसार का, जो कि मेंटोर है तेलुगु वॉरियर्स के, काफी खुश। और बाकी खिलाड़ी भी मुस्कुराते हुए। और क्यों नहीं, जिस स्थिति में है तेलुगु वॉरियर्स की टीम। और तकरीबन 6.5 रन प्रति ओवर चाहिए यहाँ पर, तो 1-1, 2-2 करके अगर आप रन एकत्रित करते हैं फिर भी अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन आपने जैसे कहा कि रन रेट को अगर बेहतर करना है तो यहाँ पर उन्हें थोड़ा बहुत जोखिम उठाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी 2-3 ओवर खेल ले, 100 के करीब पहुंच जाए, एक बार मैच को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले आए, पकड़ में ले ले, फिर गेयर बदल कर रन की गति को बढ़ाएं। क्योंकि आज का ये दूसरा मैच है और हमने जिस तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं मैच में, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेने के देने पड़ जाएं। क्या जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नॉर्मल क्रिकेट खेलनी चाहिए। बढ़िया टीम है, यहाँ पे डाइव और यहाँ पे गेंद हाथ में आई, बहुत ही बढ़िया प्रयास।
और वही कहते हुए गेंदबाज भी, इससे जो गेंदबाज का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। जी मैं कह रहा था कि बैक करना बहुत जरूरी है। देखिए किस प्रकार वहां पे फील्ड किया, भारी किनारा पर पूरी तरह से डाइव किया और बढ़िया टाइमिंग उस डाइव की। और गेंदबाज भी सराहना करते हुए, ये बहुत जरूरी बन जाता है कि फील्डर आपका साथ दे फील्डिंग में, खासतौर से जब लक्ष्य बहुत ही छोटा। इस बीच बहुत ही शानदार शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, करारा ड्राइव। 8 ओवर के बाद 82 बगैर कोई नुकसान। पीछे जा, लेफ्ट साइड, ये साइड आ। हाँ, ये साइड आ। सचिन जोशी 40 में बेहतरीन बैटिंग करते हुए, प्रिंस 28 में 26 गेंदों का सामना किया। इसके बाद निखिल, अखिल जो कि कप्तानी कर रहे हैं तेलुगु वॉरियर्स की, रघु, आदर्श, नंद किशोर। एक गहराई नजर आती है तेलुगु वॉरियर्स की बैटिंग लाइनअप पे। मुश्किलें तमाम नजर आती हुई भोजपुरी दबंग्स के लिए जो अपने घर पे खेल रहे हैं, और यही कारण है मनोज तिवारी लगातार गेंदबाजी में बदलाव करते हुए। असगर रशीद खान अब आते हुए बल्ले से ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, पर देखना होगा गेंद से क्या कमाल करते हैं। विकेट लेनी होगी, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, अगर मुकाबले में वापस आना है विकेट लेनी होगी, तभी आप दबाव डाल के रख सकते हैं। रनों पे अंकुश लगाना ऐसी विकेट पे इतना आसान नहीं, जहां पे अच्छी उछाल है और शायद ओस के कारण गेंद भी अच्छी तरह से बल्ले पे आ रही है। यथा टर्न नहीं मिल रही स्पिनर्स को, और विकेटों के बीच में बहुत बढ़िया दौड़, क्योंकि पहला रन तेज से लिया और वापस आए दूसरे रन के लिए। हम जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे, ये उनकी खासियत रही है, जब भी मौका मिलता है तो विकेटों के बीच बड़ी तेजी से रन चुराते हैं। 1 को 2 में तब्दील, 2 को 3 में तब्दील। अंदर ले ले। भोजपुरी दबंग्स की ये दुखती नब्ज रही है फील्डिंग, और उसका फायदा लेते हुए कलाइयों का अच्छा प्रयोग, खिलाड़ी डी पे तैनात, पर इस बार मात्र एक ही रन से संतुष्ट, और सही सोच भी। दूसरा रन लेते हैं तो जोखिम भरा होता, और इस वक्त जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। जिस स्थिति में है तेलुगु वॉरियर्स की टीम, एक रन से ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं। दोनों ही अब ओपनर्स पूरी तरह से सेट है। जोशी ने बनाया 43, केवल 24 गेंदों का सामना किया, और प्रिंस बखूबी उनका साथ निभा रहा है। 28 पर खेल रहे हैं 26 गेंदों में। एलिफेंट सर्कल काफी खुश लग रहे हैं। 100 हार्ट्स इनिशिएटिव, ये बहुत ही बड़ा उद्योग। यहाँ पर CCL 5 100 बच्चों को सपोर्ट करता है जिनके दिल में कोई बीमारी है, और एक अच्छी प्रथा मैं मानता हूं। न केवल खेल हो रहा है, लेकिन सामाजिक कामकाज भी कर रहे हैं, ये रोकना, और ये एक सबके लिए सीख होनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि और लोग भी अगर ऐसी पहल करते हैं बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि जितने लोग आगे आते हैं ऐसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही बढ़िया सोच है, क्योंकि ना केवल क्रिकेट है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट है, पर ऐसी जो चीजें हैं जरूर अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रहती है, और जितनी उनको सपोर्ट मिले उतनी ही कम। अभी जो औसत चल रही है तेलुगु वॉरियर्स की लगभग 10 की। और फील्ड भी अगर आप देखेंगे, फील्डर जो 30 गज के दायरे के अंदर जो तैनात किए है वो काफी दूर है, फलस्वरूप देखिए आसानी से रन चुरा रहे हैं। अगर आपको दबाव बनाना है बल्लेबाजों के ऊपर, तो फील्डर को और आगे रखिए,
ताकि आसानी से सिंगल्स ना मिले। अगर आप बल्लेबाज को छोर बदलने देंगे तो दबाव उल्टा आपके ऊपर आ जाएगा, और यहां पर पूरी तरह से विफल रही है भोजपुर दबंग्स की टीम। और ये सबसे ज्यादा इरिटेटिंग रहता है। अगर आप देखें जो थर्ड मैन का खिलाड़ी है बिल्कुल एज से आ रहा है सर्कल की, फाइन लेग का भी वहीं से आ रहा है जो स्क्वायर लेग पे खड़ा है अभी इस वक्त। इससे जो बैट्समैन है उसका राह काफी आसान हो जाती है। इस बार बढ़िया शॉट, अंतिम गेंद में 4 रन और मिलेंगे। रन तेज से बढ़ते हुए 9 ओवर के बाद 91 बिना किसी नुकसान के। अब तक मैच कुछ इस तरह चल रहा है। भोजपुर दबंग्स ने बनाए थे 155, शर्मा ने शानदार पारी खेली थी, 50 बनाए थे। उसके जवाब में 91 तेलुगु वॉरियर्स बिना कोई नुकसान। जोशी खेल रहे 44 पर, प्रिंस उनका साथ दे रहे 33 पर। और यहाँ पर दबंग्स को अगर बने रहना इस मैच में, अगर वापसी करनी है तो उनके पास विकेटों के सिवाय और कोई भी विकल्प नहीं है। विकेटें निकालनी होगी तभी दबाव बनेगा। लेकिन जिस तरह से फील्ड की सजावट देख रहे हैं हम लोग, सिंगल्स नहीं रोक रहे हैं। फलस्वरूप क्या हो रहा है, आप सिंगल्स तो दे ही रहे हैं और खराब गेंद पर चौका पड़ रहा है। 9 रन या 10 रन प्रति ओवर आप दे रहे हैं। इस वक्त 9 ओवर हो चुके हैं और 91 उनका स्कोर है। दिमाग जैसे आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए अगर वापस आना है विकेट लेने होंगे, पर मेरा यह भी मानना है एक आध विकेट से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। गुच्छे में विकेट लेने होंगे, 3 या 4 विकेट जल्द से जल्द, तभी आप दबाव डाल पाएंगे। लिविन सारकर मुकाबला देखते हुए, जो कि मेंटोर भी हैं इस तेलुगु वॉरियर्स की टीम के, काफी कुछ सीख दी है। आज रणनीति बहुत बढ़िया नजर आई है तेलुगु वॉरियर्स की। जब पहले फील्ड में थे, गेंदबाजी में काफी अनुशासन नजर आया, और अब बैटिंग में जो एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, जिस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, दोनों बैट्समैन प्रिंस और सचिन जोशी अपना रोल जानते हैं। सचिन जोशी आक्रामक शैली में खेलते हैं, प्रिंस रुक के खेल रहे हैं, ज्यादा ठोस नजर आ रहे हैं। सचिन जोशी के बाद वो फ्लेयर है, अटैकिंग मूड में बैटिंग कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात, अकलमंदी से बैटिंग कर रहे हैं, जोखिम नहीं ले रहे, खराब गेंदों का इंतजार कर रहे हैं, और इसी के कारण अपना विकेट नहीं गंवाया है। लेकिन अगर हम एक बार दबंग्स के गेंदबाजों की अगर बात करें तो लय में नहीं लग रहे, उतनी असरदार गेंदबाजी नहीं हो रही है। गेंदबाजी में वो धार नहीं है। फिर से विकेट कीपर कह रहे ये रन रोकने, लेकिन आप कैसे रोकेंगे ये रन? आपको फील्डर को और आगे बुलाना पड़ेगा। काफी दूर खड़े हैं और इसी के कारण रन आसानी से मिल रहे हैं उन्हें। ये तैयार खड़े हैं अखिल बाईं तरफ वार्म अप करते हुए। जी हाँ, ठंड तो बहुत है और सही चीज रहती है कि आप अपनी बॉडी को आप वार्म रखें, कहीं ना कहीं थोड़ी मूवमेंट्स करते रहे, कि अचानक जब बैटिंग आती है ऐसे मौसम में इतना आसान नहीं। फुटवर्क दिमाग जैसे हम सब जानते हैं बहुत अहम रहता है, और जितनी आप मूवमेंट करें बाहर उतना बेहतर रहता है, खासकर ऐसे फॉर्मेट में जब आते ही आपको जरूरत है रन बनाने की। चलो जल्दी 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 जल्दी। रिक्वायर्ड रन रेट 6 हो गया है, स्टार्ट लेना स्टार्ट। यानी 1 रन प्रति गेंद। और इस बार
बढ़िया शॉट खेला था लेकिन सीधा फील्डर के हाथों चला गया। सोच सही थी लेकिन गेंदबाज यहां पर भाग्यशाली रहे। दिव्यांग, आज जब हम सुबह आए दिल्ली से तो इतना फॉग थी, इतनी फॉग का प्रभाव था। कलकत्ता में मौसम कैसा है? क्योंकि यहां तो रांची में इस वक्त ठंड काफी नजर आ रही है और पता चल रहा है कि जी हाँ, ठंड है। वाकई में बहुत ठंड है। मैं जब यहाँ पर दिशाहीन गेंद, लेकिन हम मौसम के बारे में बात कर रहे थे और ये साफ दर्शाता है, देखिए यहाँ पर कितनी सर्दी है। हालांकि कलकत्ता में उतनी सर्दी नहीं थी, उतनी ठंड नहीं पड़ी थी वहां पर। लेकिन आप तो इस ऐसे मौसम के आदी होंगे जहां पर दिल्ली में जहां बहुत ठंड पड़ती है, आपको तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और तभी मैं, आप देख रहे हैं, फील्ड में भी जा रहा हूँ, वापस भी आ रहा हूँ, मुस्कुरा भी रहा हूँ। हमारे जो प्रोड्यूसर है उनको काफी ठंड लग रही है जो मेरे साथ बैठे हैं। फिर से वाइड का इशारा, बिल्कुल सही निर्णय। लगातार दिशा से भटक रहे हैं। दो गेंदें बहुत बढ़िया करते हैं पर उसके बाद थोड़ा सा कुछ बदलाव कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। रन बहुत आसानी से आ रहे हैं तेलुगु वॉरियर्स के लिए। तभी जो रिक्वायर्ड रेट है अब 6 से भी नीचे, अंतिम गेंद पे 1 रन और मिलेगा। तो आधे ओवर समाप्त हो चुके हैं इस पारी के। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 97 बिना किसी नुकसान के। सत्तानवे बगैर कोई नुकसान। बहुत ही मजबूत स्थिति में यहां पर तेलुगु वॉरियर्स। 7 गेंदबाजों का प्रयोग किया यहां पर